हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 4.4 माय फाइनेंशियल करियर। इट इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी ह्यूमरस। वी आर गोइंग टू सी इट and we are going to enjoy it also. And very amazing chapter it is. Let's start seeing it. If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also like this video. And in this video we are going to complete this chapter with notes also, so watch it till end. Let's start with our topic. First, let's go to the warming up section of this chapter so that we get warmed up for the humorous chapter my financial career. The question number one of warming up section is when you open a savings account at bank, you need to fill up deposit forms or flips. Observe the following forms and fill up your details. So this is a personal question, so you can do it on your own also. Let's go on to the question number two, that is write in your own words. This question we will discuss now. First one is, why does the bank need so many details of its customers? Actually, this question you will also in your mind also it would have came. The bank needs so many details of the customers to maintain their accounts and keep records of all the transactions that take place in the bank. I think so, like that. And also, it keeps the details of the customers as a proof to avoid any chance of banking fraud, which is a very important thing. So that's why it needs all our details. आपने सुना ही होगा बहुत लोग गफला करके चले जाते हैं, डेट ऑल अवॉइड करने के लिए उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो किनको लोन दे रहे, दे नीड डिटेल्स. Second question is, what problems do customers face when they have to make a cash deposit at a bank? आप लोग को ये सब ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग ने अभी तक किया नहीं होगा बैंक में अभी तो. Actually, customers face the some difficulties that I will say now. First, I think so, may be asked to submit KYC documents. Second difficulty they face, that can face a long queue. Queue means लंबी लाइन. फिर और एक डिफिकल्टी हो सकती है कि हैव टू फिल अ डिपॉजिट फॉर्म. देन दे मे फॉरगेट और नॉट हैव ऑल द डिटेल्स नीडेड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट. ऐसा होता है ना, मैं ये भूल गया वो भूल गया, वो उसके लिए वापस जाओ घर पे वापस आओ. सो बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है ना, कंटाला भी आता है वापस जाके आने को, फिर अगले दिन आओ फिर से करो. So that all. Next question is, what are the latest modern methods of depositing money in your own or somebody else account? Latest modern method की बात करें तो the latest modern methods of depositing money in your own or somebody's account are depositing cash in machines at ATM centers and branching using your ATM or debit card, using online banking system to transfer money from one account to another using the internet. That is again one mode, depositing cash or transferring money from one account to another through any electronic payment company using mobile wallets, UPIs, SMS transfers through smartphones. These all are modern methods of depositing money in your own or somebody's account. तो ये सब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आप सोच रहे हो कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हम जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्यों पूछा जा रहा है. इट इज आस्क्ड टू अस बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू बैंक. यस, आप भी बैंक में गए होगे. अब यहाँ पर बैंक का ही एक्सपीरियंस हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. यहाँ पर वार्मिंग अप क्वेश्चन सेक्शन में और एक क्वेश्चन दिए हैं, मेक अ वर्ड वेब ऑफ एटलीस्ट 12 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग. मैं आपको 12 वर्ड्स बता देता हूँ. आई थिंक सो मेरे हिसाब से कुछ ड्राफ्ट, कैश, डिपॉजिट, चेक, विदड्रॉ, ट्रांसफ़र, ब्रांच, क्लर्क, अकाउंट, मैनेजर, क्रेडिट, करेंसी,
This all words can be included in your web diagram for this. It's a simple question. You would also know about it. Now let's start with our chapter that my financial career, which is according to me a humorous chapter. It is according to me a humorous chapter. Now what I mean by humorous chapter, इट इज़ वेरी मच कॉमेडी चैप्टर, मतलब बहुत मज़ा आने वाले हैं आपको. यू विल एन्जॉय इट क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसा अनयूजुअल है इसमें. यहाँ पर एक मैन है जिसके साथ कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है जो दूसरों के साथ नहीं होता. इसलिए होता है ना कि मज़ा आता है किसी को अनयूजुअल देखकर. So this is a short story by Stephen Leacock and reflects on some people's fear and mistrust of the banking system. And the narrator of the story elaborates his anxiety during banking affairs. Now let's start with the chapter. Let's go. Now I will read and explain you every line. When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me. The wickets rattle me. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. Rattled means nervous. द क्लर्क्स रैटल मी मतलब वो रैटल करते हैं. तो ये यहाँ पर एक आदमी के बारे में है. ये आदमी को क्या हो रहा है, आपने सुना होगा फोबिया के बारे में. वाटर फोबिया होता है, डार्क फोबिया होता है, हाइट फोबिया होता है. मतलब फोबिया इज नथिंग बट इट इज़ मतलब एक डर होता है मन में कोई एक्सीडेंट कोई इंसिडेंट की वजह से बैठ जाता है कि उन्हें डर लगने लगता है. जैसे कि वाटर फोबिया में क्या होता है, ऐसा बार बार उन्हें लगता है कि पानी में डूब जाऊंगा, तो इतने से चुल्लू पर पानी में डूब जाऊंगा ऐसा लगने लग जाता है. और हाइट फोबिया भी वैसे ही होता है, डार्क फोबिया होता है. तो यहाँ पर जो मैन है, ही हैज़ बैंक फोबिया. उसे बैंक में जाने से डर लगता है. वॉट अ ह्यूमरस थिंग. इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस थिंग दैट इट हैज़ अ बैंक फोबिया. मतलब ऐसे मैंने बोला है कि बैंक फोबिया है उसे, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे एक्सप्लेन किया गया है, इट हैज़ वेरी मच फियर टू गो इन टू अ बैंक. तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि वो बोल रहा है, अपने आप को नरेट कर रहा है कि जब मैं बैंक में जाता हूँ, आई गेट वेरी मच नर्वस. जो वहाँ पर के काम करने वाले क्लर्क्स होते हैं वो मुझे और नर्वस करते हैं. उन्हें देखकर मैं और नर्वस हो जाता हूँ. द विकेट्स, अब विकेट्स यहाँ पर वो क्रिकेट वाला विकेट्स नहीं, यहाँ पर विकेट्स का मतलब होता है काउंटर्स होते हैं ना बैंक में. तो वो काउंटर्स देखता हूँ तो और मुझे डर लगने लग जाता है. ये भगवान, ये काउंटर्स. और उसके बाद द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी. पैसा देखता हूँ बहुत सारा तो और डरने लग जाता है. बैंक में जैसे मैं हाथ में पैसे देखता हूँ तो और डर लग जाते हैं. अभी आप बताओ, किसी भी इंसान को पैसा देख के डर लगता है पैसे से? नहीं ना. सब लोग को तो आज तो पूरी दुनिया पैसे के पीछे भागती है. सो इवन इफ ही सीज द मनी, ही गेट्स रैटल्ड. एवरीथिंग रैटल्स हिम. वहाँ पर बैंक में हर एक चीज उसे डराती है. देखते आगे क्या बोल रहा है वो. द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, आई एम a bank I am a hesitating jay. If I attempt to transact business there, I will become an irresponsible idiot. अब क्या बोल रहा है कि जब द मोमेंट व्हेन आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, मतलब थ्रेशोल्ड मतलब आप बोल सकते हो वॉल्स के बीच में एक डोर होता है. मतलब आप बोल सकते हो न घर के अंदर न घर के बाहर, जो एकदम दरवाजे पे, मतलब दरवाज़ा क्रॉस करके आगे आना. ऑफ अ बैंक आई एम हेजिटेटिंग जाए, मतलब मुझे एकदम हिचकिचाहट होने लग जाती है. मैं डरता हूँ, बहुत डर लगने लग जाता है. जैसे ही मैं बैंक के अंदर आ जाऊँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसे डर लगने लग जाता है. इफ़ आई अटेम्प्ट टू ट्रांसैक्ट बिजनेस देन आई बिकम एन इररेस्पॉन्सिबल इडियट. अगर मैं बिजनेस ट्रांसैक्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं एक इररेस्पॉन्सिबल इडियट हूँ. फिर तो मुझे बैंक के चक्कर ही खाने पड़ेंगे. अपने आप को इडियट समझेगा अगर बिजनेस ट्रांसैक्ट किया तो. यहाँ पर थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द पार्ट बिटवीन टू साइड्स ऑफ वॉल. ओके, जो दो साइड्स होती है वॉल के बीच में जो पार्ट होता है, वहाँ से उसने जैसे ही आगे बढ़ा, उस ही गेट्स रैटल्ड, नर्वस. एंड टू रैटल मीन्स मेक समवन नर्वस. एंड जे हियर जे है ना,
इट मीन्स अ पर्सन हु टॉक्स फुलिशली। वो एकदम बेवकूफ़ जैसी बातें करना, मतलब ऐसा होता है ना जब आप नर्वस होते हो, आप कुछ बोलना कुछ और चाहते हो, मुंह से निकल कुछ और जाता है। ओके, उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. So वो बोलता है कि मुझे भी इस सब बारे में पहले से पता था, लेकिन मेरी अभी मेरी सैलरी ना बढ़ गई है, मेरी सैलरी $50 बढ़ चुकी है। और अभी मैंने सोचा कि अभी इतना सारा कैश तो मैं अपने घर में तो नहीं रख सकता, इसलिए बैंक इज़ द ओनली सेफ प्लेस फॉर इट। मुझे ये सब पता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इतना सारा कैश तो नहीं रख सकता ना अपने घर पे। तो अभी आना पड़ा, वरना नहीं आता कभी मैं, ऐसा सोच रहे हो। अभी आगे देखते। सो आई शैम्बल्ड in and looked timidly. Shambled means entered in with confusion. Confusion के साथ अंदर जाना. So I shambled in and looked timidly around at the clerks. तो वो अंदर गया और एकदम कंफ्यूजन में अंदर गया, और फिर सब लोग को देखने लगा, वो क्लर्क्स को देखने लग गया, ऐसे घूर घूर के देख रहा था और डर डर के, मतलब सब लोग उसे और फील हो रहा था सब लोग को। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स टू कंसल्ट द मैनेजर। इसके दिमाग में क्या लग रहा था इसे कि अभी तक उसने अपना कभी अकाउंट ही नहीं खोला है, और अभी जब पहली बार आया है तो वहाँ पर जाके उसे आइडिया है, मतलब उसके दिमाग में ऐसा लगता है उसे कि जिसको भी अकाउंट खोलना है ना बैंक में, तो उसे पहले मैनेजर से मिलना पड़ेगा तभी अकाउंट खोल सकता है। मतलब हर एक जन जिसको अकाउंट खोलना है वो सब मैनेजर से मिलने जाएंगे, ऐसा उसे लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड, मतलब एक वकेट मीन्स काउंटर, तो एक काउंटर में गया जहाँ पर लिखा था अकाउंटेंट। अकाउंटेंट होता है ना, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा बैंक में अकाउंटेंट होता है, उसके काउंटर पे गया। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। अब ये अकाउंटेंट को डर के देख के भी उसको डर लग रहा है, वो लंबा है, उससे लगता है कि वो एकदम डेविल, शैतान। वो दिखने में थोड़ा ऐसा था, पहले से यहाँ पे इसको बैंक पे आके डर लग रहा है, वो थोड़ा सा दिखने में ऐसा था, तो इसके होश ही उड़ गए। आगे देखते हैं। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, उसकी उसे देखते ही मैं डर गया, बाप रे। माई वॉइस वॉज सेपल्क्रल। सेपल्क्रल मीन्स ग्लूमी, सोरोफुल, डरी हुई, एकदम एकदम स्लो आवाज। आप बोल सकते हो नॉट क्लियर वॉइस, आधा अधूरा बोल रहा है, होता है ना, अरे अरे मैं ये ऐसे होते हैं ना, उसे बोलते हैं सेपल्क्रल वॉइस। तो उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, और उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, वो एकदम अनक्लियर वॉइस हो गई उसकी। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड solemnly. Solemnly means without any reason. Alone. आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन। अब उसने अकाउंटेंट को बोला, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। और फिर उसने आई एंड एडेड सोलमली मीन्स विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह मैंने बोल दिया अलोन। अब क्या वजह थी, ज़रूरत क्या थी अकेले, लेकिन फिर भी अभी मैं इतना नर्वस हो गया था कि वो भी निकल गया कि मैंने ऐसे बोला, क्या मैं मैनेजर को मिल सकता हूँ अकेले में। बट ज़रूरत नहीं थी अकेले में बोलने की, फिर भी मैंने ऐसे ही बोल दिया। नर्वसनेस में ऐसा होता है ना बार बार। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, उसे भी नहीं पता क्यों उसने ऐसा बोला। फिर आगे देखते। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम। फेच्ड हिम मीन्स टुक हिम, अपने साथ ले गया। तो उसने बोला सर्टनली मीन्स हाँ ऑफ कोर्स यू कैन मीट, सेड द अकाउंटेंट, और उसे अपने साथ ले गया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, एक अच्छा इंसान था मैनेजर। आई हेल्ड माई $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. उसने अपने 56, उसके पास $56 थे जो वहाँ पर जमा कराने आया था। क्लच्ड मीन्स होल्ड टाइट, एकदम टाइट पकड़ के, एकदम बॉल की तरह गोल मटोर कर एकदम टाइट पकड़ के लेके आया था अपने पॉकेट में। और अगर अपने पास इतने सारे पैसे होते तो बार बार अपने हाथ पॉकेट पे ही जाते ना चेक करने को, है ना, है ना। तो वैसा उसका भी हो रहा था।
आर यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नोस आई डिडंट डाउट इट। अब देखो, मैनेजर के सामने आ गया, वो उसे मैनेजर के पास लेके गया, फिर भी उससे पूछता है, क्या तुम मैनेजर हो? अब ये पूछने की क्या जरूरत है, जो सामने खड़ा है मैनेजर है ही है ना, वही है मैनेजर, फिर भी उसे पता है, फिर भी उसने पूछा। यस आई ही सेड, उसने बोला हाँ मैं ही हूँ। कैन आई सी यू? आई आस्क्ड। अबे भगवान, दूसरा बकवास क्वेश्चन पूछा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अब सामने बात ही कर रहा है ना, उसी लिए लाया है, फिर भी। Alone. I didn't want to say alone again, but without it the thing seemed self-evident. तो उसने, और ऊपर से उसने फिर से बोला कि अकेले में। तो वो बोलता है कि मुझे भी अलोन वैसे बोलना नहीं था, फिर लेकिन कैसे पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया नर्वसनेस में। तो फिर से मैंने उसको बोल दिया कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, वो भी अकेले में। और ही डिडंट वांट टू से, लेकिन उसे लगा कि अलोन नहीं बोलूंगा तो थोड़ा सा ये सेल्फ एविडेंट, मतलब खुद को संतोष नहीं पड़ेगा, मतलब उसे अकेले में बोलूंगा तो शायद सेटिस्फेक्शन होगा मुझे, ऐसा लगा उसे। द मैनेजर लुक्ड एट मी, द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। इन सम अलार्म मतलब एकदम आप बोल सकते हो ना कि चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया था इसे देखकर, कैसा इंसान है, ऐसे कैसे बात कर रहा है। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। उसे थोड़ा सा ऐसा शक गया कि कहीं इसके पास एकदम टॉप टॉप सीक्रेट तो नहीं है इसका कोई, जो मुझे बताने आया है, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ इस बैंक के बारे में, कुछ टॉप सीक्रेट। उसे ऐसा लगा। कम इन हियर, ही सेड, एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम। ही टर्न्ड द की। तो यहाँ फिर वो बोलता है, अरे हाँ इसके पास सीक्रेट ज़रूर होगा, तो तुम आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम लोग अंदर वाले रूम में जाते हैं, इन द प्राइवेट रूम। और उसने ही टर्न द की, मतलब उसने की घुमाई और दरवाज़ा खोला। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड, सिट डाउन। उसने बोला अब यहाँ पर हमें कोई इंटरप्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप इधर बैठ जाओ, शांति से मुझे बताओ क्या सीक्रेट। मतलब ऐसा नहीं बोलता है वो। फिर उसने क्या बोला, वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर, आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अब दोनों ही बैठ गए और एक दूसरे को देख रहे थे, बस देखे ही जा रहे थे। मैनेजर क्या बोले इसमें, लेकिन उसे बोलना था, लेकिन उसके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, वॉइस ही नहीं है, उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। ऐसा होता है ना कभी कभी, डर के मारे आवाज़ ही नहीं आती, ऐसे मुंह हिलते रहते, लिपसिंग होती है लेकिन आवाज़ ही नहीं आती, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यू आर वन ऑफ पिंकटन्स मैन आई प्रेज्यूम। वो बोलते हैं शायद तुम पिंकटन के मैन हो, वन ऑफ द पिंकटन्स मैन। अब नाउ हु इज मिस्टर पिंकटन? ही इज अ डिटेक्टिव। ओके, सो ही इज अ डिटेक्टिव, तुम उसी के कोई आदमी हो क्या? मुझे ऐसा लगता है, ही सेड, उसने ऐसा उसे बोला। ही गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। तो ऑथर यहाँ पर लिखते हैं कि उसने उसे पता है, मतलब एक मिस्टीरियस मैनर, मतलब स्ट्रेंज मैनर, मेरा ये जो अजीब सा स्वभाव था ना। अब कोई आदमी अजीब सा स्वभाव कब करता है, जब उसके पास कोई सीक्रेट हो या फिर वो थोड़ा सा डरा हुआ हो। तो यहाँ पर इसे लगा कि इसके पास एक सीक्रेट है और ये एक डिटेक्टिव है। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। उसे पता था कि वो क्या सोच रहा है, और वही उसको और डरा रहा था। अभी भगवान ये डिटेक्टिव है, सोच रहे हैं मेरे को। नो, नॉट फ्रॉम पिंकटन्स, आई सेड, नहीं नहीं मैं पिंकटन से नहीं आया हूँ। सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी टू टेल द ट्रूथ, आई वेंट ऑन एज इफ आई had been in prompted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. अब एकदम डर डर के, और ऐसा वो इस नज़र से देख रहा था तो एकदम डर गया था कि अभी बोलूँ कैसे। उसने तो मेरे को डिटेक्टिव विटेक्टिव समझ लिया, अब मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि मुझे ये करना है। और एकदम शांति से उसने बोला कि मैं एक डिटेक्टिव तो नहीं हूँ,
बस मुझे अपना एक अकाउंट खोलना है और मुझे अपना सारा मनी आपके बैंक में रखना है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। मैनेजर को शांति हो गई। हाश कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई सीक्रेट बिक्रेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो गुस्से में था। He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gould. Gould means famous rich person, and Baron Rothschild is the wealthiest, most influential man of the time. Okay, तो इसे लगा, इसे पता चला कि वो बैरन रॉथस्चाइल्ड का सन है, गुल्ड। A large account, I suppose, he said. उसने बोला, मैनेजर ने बोला, हाँ लगता है ये एक अमीर का बेटा है और ये इसके पास लार्ज अमाउंट होगा, ऐसा वो सोच रहा था मैनेजर। फेयरली लार्ज, I whispered. I proposed to deposit $56 now and $50 a month regularly. तो यहाँ पर ये बोलता है, हाँ मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर $56 अभी डिपॉजिट करूँगा और $50 हर महीने रेगुलरली। The manager got up and opened the door. He called to the accountant. Mr. Montgomery, he said, unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. अब देखो यहाँ पर, अभी मैनेजर को आया सीरियस गुस्सा। अरे सिर्फ $56 यहाँ पर डिपॉजिट करवाने के लिए, एक अकाउंट बनवाने के लिए इसने इतना माथा खाया, मेरे को इतना टेंशन दिया, एकदम सीक्रेट रूम में लिख के आया और ऐसा बोल रहा है। क्या पागल इंसान है, ऐसा सोच के मैनेजर गुस्सा होके अपना सारा गुस्सा उसने अकाउंटेंट पे उतार दिया और उससे बोला, मिस्टर गोमेट्री, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। अब बेचारे अकाउंटेंट पे पूरा गुस्सा निकल गया और ये सब गुस्सा निकल के बाद बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। आई रोज मतलब आई गॉट अप। रोज मतलब यहाँ पर फ्लावर रोज नहीं, उठ जाना, खड़ा होना। A big iron door stood upon at the side of the room. तो उसने क्या बोला कि एक बड़ा सा आयरन डोर stood upon at the side of the room. Good morning, I said and stepped into the safe. वाह, ये गुड मॉर्निंग बोल के वहां से निकल गया। Come out, said the manager coldly and showed me the other way. वो मैनेजर ने ऐसे बोला, बाहर आइए ऐसे बोल के उसको बाहर लाया और उसने बताया इस तरह बनाना है एक अकाउंट। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick. उस जल्दी जल्दी वो अकाउंटेंट के काउंटर पे गया और वहाँ पर उसने अपने मनी का जो पूरा बॉल बना दिया था ना, वो वहाँ पर डाल दिया विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, एकदम जल्दी वाला मूवमेंट, एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा हरी में है। माई फेस वॉज गैसली पेल, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ, गैसली पेल हो गया था उसका फेस। हियर आई सेड डेपोजिट इट, द उसने बोला, चलो चलो ये हम ये लो डिपॉजिट करिए ये। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस। उसकी जो आवाज़ का जो टोन था उससे ऐसा समझ में आ रहा था कि चलो ये एकदम खतरनाक काम हम लोग साथ में करते, बहुत दर्द होगा लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह काम कर रहे हैं। He took the money and gave it to another clerk. उसने मनी लिया और दूसरे क्लर्क को दे दिया। He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. तो उसने सारा प्रोसीजर किया। I no longer knew what I was doing. उसे ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, बस वो जैसे जैसे वो करवा रहा था वैसे वैसे करता जा रहा था, इतनी हड़बड़ाई में आ गया था वो। द बैंक स्वैम बिफोर माई आईज। इज इट डिपॉजिटेड, आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, एकदम शिवरिंग वॉइस में उसने पूछा, इज इट डिपॉजिटेड? इट इज, सेड द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने बोला, हाँ हो गया। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक। अभी ये बोलता है, अभी मुझे पैसे वापस चाहिए।
अभी अकाउंट खोला, उसमें $56 डाले, अब मुझे कुछ पैसे उसमें से निकालने। अरे लेकिन अगर पैसे निकालने ही थे, अगर कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अगर पैसे निकालने ही थे तो उससे डिपॉजिट करने से पहले ही मैं पैसे निकाल लेता, उसके बाद डिपॉजिट करता। लेकिन ये इतना डर गया था कि उसे डिपॉजिट कर दिया, अब चेक ले रहे हैं उससे। ये थिंग्स। देखते हैं आगे क्या होता है। My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. हाँ, उसका आइडिया क्या था? अपने जो घर का खर्चे के लिए, इस महीने के खर्चे के लिए उसे $6 निकालने थे, वो 56 में से। ओके। और उसने उसे किसी ने चेकबुक दी और किसी ने उसे सिखाया कि कैसे ये चेकबुक भरा जाता है और चेक कैसे बनाया जाता है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन एंड दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर। अब उसके पास $56 थे तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाती है, मिलियनर था वो। और लोगों जो बैंक में जितने भी लोग थे उन सबको लग रहा था कि ऐसा मिलियनर है, इतना सारा पैसा है, इसको ये सब भी नहीं आता बैंक का काम। छे, ऐसा इम्प्रेशन हो गया था उसका। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन द एट द क्लर्क। उसे जल्दी जल्दी, उसको पता भी नहीं उसने क्या लिखा चेक पे, जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे लिखता गया और उसे क्लर्क को दे दिया। ही लुक्ड एट इट, वो बस देखता ही रहेगा ये क्या हो रहा है। वॉट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन। वो वो चेक देख के एकदम एकदम शॉक्ड हो गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम अपना सारे पैसे वापस ले रहे हो, 56 ही आस्क्ड इन सरप्राइज। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. तो वो एकदम अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। ए भगवान, देखो वापस के वापस वही $56 चाहिए तो इस तूने डिपॉजिट ही करवाए। अरे वो खुद सरप्राइज में आ गया था, उसने 6 की जगह पे 56 लिख दिया और अभी तो वो बोल भी नहीं सकता कि मुझे $6 चाहिए सिर्फ। अरे क्या लोग सोचेंगे, क्योंकि वो ये सुन के सब लोग वहीं पर रुक गए। तो वो ये भी नहीं, वो बोलते शर्म आती है मुझे बोलने में, इसलिए वो ये भी सोचता है कि मैं नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. अब ऐसे में मैं कैसे बोलूँ, ये सोच के वो डर कर वो बोला, हाँ हाँ मुझे चाहिए, सब चाहिए वापस। ए भगवान, अब ये इतनी मेहनत से उसने डिपॉजिट करवाया। यू विथड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, इवन एवरी सेंट ऑफ इट। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। तो वो क्लर्क बोल रहा है कि आप अपना जितना भी आपने डिपॉजिट किया वो सब कुछ वापस विदड्रॉ कर रहे हो, एक पैसा भी नहीं रख रहे हो उसमें बाकी। तो मतलब क्या आप आगे कभी भी हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं करने वाले, क्योंकि उसको लगा कि हमारा एक कस्टमर जा रहा है। ये बोलता है नेवर। An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. I made a wretched attempt to look like a man with a fearfully quick temper. तो उसे पता चल गया कि इन लोग को लग रहा है कि ये चेक लिखते समय किसी ने उसको कुछ ऐसा इंसल्ट हो गई है, उसके कुछ उसे पसंद नहीं आया है इस बैंक का, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है और अपनी अकाउंट उससे कैंसिल कर रहा है। वो उस क्लर्क को ऐसा लगा उनका एक कस्टमर जा रहा है, और एक्चुअली बात तो ऐसा कुछ थे ही नहीं, लेकिन अभी ये इसे पता चल गया कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो इसलिए अपने चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखा है कि वो एकदम जल्दी गुस्से आने वाला आदमी है, ऐसा दिखा दिया लोगों को, ताकि लोगों को ये सच लगे। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड। तो कैसे आप लोगे मनी, कैश में, चेक में? वॉट, हाउ विल यू हैव इट? ओ, आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर। पहले उसको लगा कि कैसे खाओगे, हाउ विल यू हैव इट, वो इसलिए पूछा वॉट। तो उसने बताया, ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक। बिना सोचे मैंने बोल दिया इन 50s। अब इन 50s का मतलब 50 के डॉलर्स में, 50 में। अरे लेकिन थे ही $56, तो उसमें वो 50s में मांग रहा है तो ऐसे ही होगा, $50 प्लस $6 अलग अलग मिलेंगे। He gave me a $50 bill
एंड द सिक्स ही आस्क्ड ड्राइली, उसने वो भी पूछा, इन सिक्सेस। तो अभी उस क्लर्क ने ये भी पूछा, अभी ये बाकी के सिक्स कैसे दो? तो वो बोलता है इन सिक्सेस। अभी छः उनमें भी सिक्सेस। आई सेड, he gave it to me, and I rushed out. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter, then went up to the ceiling of the bank. जैसे पैसा मिला वो भाग गया जोर से, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकला, उसे बैंक में से, अरे, रोर ऑफ लाफ्टर मीन्स बहुत सारे लोगों की हंसी की आवाज एक साथ सुनाई देने लगी, जोर जोर से हंस रहे थे। और वो सब लोग क्यों हंस रहे थे? इस पे ही हंस रहे थे। एक्चुअली वो लोग इस पे ही हंस रहे थे अंदर। सब लोग जैसे ही वो बाहर गए, लोगों की हंसने की जोर जोर से आवाज आई। सिंस देन आई बैंक नो मोर। उसके बाद मैं बैंक में गया ही नहीं कभी। इतना शेम्ड फील हुआ मुझे। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। अपने मोजों में और अपने पॉकेट में ही रखता है वो अपने सेविंग्स और मनी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नोट। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था एक्चुअली, ये बहुत ही ह्यूमरस था। नाउ लेट्स सी द इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस ऑफ दिस chapter. We will discuss them and I will also provide the answers of everyone. First question is, find from the lesson the antonyms of the following. Simple it is. First is afterwards. Antonyms means opposite, so afterwards opposite is beforehand. Spending opposite is saving. Careful opposite is careless. Withdraw opposite is deposit. Confidently opposite is timidly. Cheerful opposite is sepulchral. Okay, so these are the opposites from the lesson. Now let's look forward to question number 2. Fill in the blanks choosing the appropriate word or idiom from the lesson. The answers are in front of you. You can note it them or you can take a screenshot. Here the first one is the dash solved the mysterious crime, the detective. Second one is in the dash in the examination I did not know the answer, so I dash made a plunge. Third one is he was dizzy and he dashed into the room, shambled. Fourth one is while arguing with his elders, he had an idea. Fifth one is the sight of a snake dash rattles me. Next one is as soon as I dash off my home, I greet my family, cross the threshold. Now let's see the question number 3, which is again amazing. Using the following points, frame a character sketch of the narrator. Support each character with rate with instances from the lesson. There are some points: diffident and timid, unusual behavior, ignorant about banking, nervous and careless, economic. So I have given the answer for it. I have given a character sketch. You also know how we discussed in the story. The narrator of the story felt nervous when he had to deal with the bank. You can note this answer, and or you can also write it on your own and you can take it as a reference. He was a reserved person and wasn't really involved in economic affairs. As soon as he entered the bank, he became diffident and timid. He started behaving in an unusual way. This all you can mention. Next question is, rewrite the following in indirect speech. First one, can I see the manager? I said. Certainly, said the accountant. Answer, I asked if I could see the manager. The accountant replied that I certainly could. You should made proper changes. Soon I am going to upload a video on indirect and direct speech again. If I have also uploaded one video before, you can watch it. I have given the link in description. Second is, good morning, I said and stepped into the safe. Come out, said the manager coldly. Answer, I wished good morning and stepped into the safe. The manager coldly asked me to come out. Third one is, the word seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. Answer is, the word seemed to suggest that we did this painful thing while the fit was on us. Fourth one is, what are you drawing it all out again? He asked in surprise. Yes, the whole thing, I said. Answer is, he exclaimed and asked in surprise whether I was drawing it all out again. I answered in affirmation that I was drawing the whole thing.
Fifth one is, how will you have it? She said. In 50s, I said. Answer is, he asked how I will have it. I replied that I would have it in 50s. Next question is question number 5. Read the statement, write your views first and counter view later into separate passages. Online or net banking is better than going personally to the bank for transactions. Here I have given the views first. So this is a writing skill topic, and I hope that you write it on your own. I have just given you a reference, so I hope that you write it in your own. Now this is the counter views. And with this, we finish with our today's topic. Thanks for watching. We have finished with our today's topic. We did this very much humorous chapter, and I enjoyed it explaining you too. And I hope that you also enjoyed it. And wait for our new interesting video. And till then, thanks for watching.